Thanks everyone. Let's start with the next topic, next rules for subject verb agreement. Subject verb agreement में हमने last करा था कि अगर दो subjects को आप as well as, together with, in addition to, and not, and with इसके साथ जोड़ते हो तो verb is always according to the first subject. चाहे आपका first subject singular है, plural है या किसी भी person का है तो verb will be according to the first subject. Now the next is after all, many, both, several, few, a few, or the few. इनके बाद जो भी आपका noun होगा और helping verb होगा, that will be plural. Plural noun and plural verb is used. Plural noun and plural verb is used. For example, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि अगर इनके बाद हम लोग काउंटेबल नाउन्स लिख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन्स यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा. ठीक है. ऑल द tigers are wild animal. All the money was taken away by the thief. तो इसमें दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई कि if the noun is countable, the verb is plural. If the noun is uncountable, the verb will be singular. Otherwise, in nouns के बाद हमेशा हमारा जो helping verb और noun होगा, that will be plural. For example, next example is many students got good marks. Many students got good marks. He informed the police all that happened last night. I would inform you all that was discussed in the meeting. अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज किया है. क्यों यूज किया है? We do not have used any noun after all, but still we have used was. क्यों यूज किया है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि all के बाद जो हमारा noun होगा, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो यहाँ हम लोग इस सेंटेंस में क्यों यूज कर रहे हैं was? Because all here is used as one unit. All here is used as one unit. एक यूनिट की तरह कंसीडर किया जा रहा है all को, इसलिए हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं.
क्लियर? अब इसी तरह से इफ वी यूज सम, अगर हम लोग सम यूज कर रहे हैं तो सम के बाद हम लोग काउंटेबल भी यूज करेंगे नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज करेंगे। दोनों एग्जांपल्स देख लेते हैं विद सम, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब इज प्लूरल, एंड इफ इट इज अनकाउंटेबल नाउन देन वर्ब इज सिंगुलर। For example, some animals are faithful. Some animals are faithful. Some milk is needed. Some milk is needed. So here we have used singular and plural helping verb. When the noun is countable, the verb is plural. Because some के बाद noun जो है वो singular भी use किया जा सकता है और plural भी use किया जा सकता है। Singular कब use किया जाएगा? When only it is uncountable noun. Otherwise some के साथ हमेशा plural noun ही use किया जाता है। Clear? Clear है यहाँ तक? Now the next thing is few, a few, and the few. Few, a few, and the few. Only with the change of article, the meaning of the word will be totally changed. ये तो आपको सबको पता ही है कि अगर इनके साथ हम लोग आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो मीनिंग कुछ और है, अगर इसके साथ हम लोग आर्टिकल नहीं यूज कर रहे तो मीनिंग कुछ और है, और अगर आर्टिकल चेंज कर रहे हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। And few is always used for the countable nouns. Few is used for the countable nouns. For example, few students were absent. Few students were absent. A few students were appearing in the exam. The few students appeared in the examination. Got good marks. अब मुझे कोई इसका डिफरेंस बताएगा? नाउन तो हमने प्लूरल में यूज किया, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लूरल में आ गया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू? इनमें क्या डिफरेंस है? फ्यू मीन्स few is used in the negligible sense. बिल्कुल ही कम, मीन्स अगर सपोज क्लास में 100 बच्चे हैं तो बिल्कुल थोड़े से बच्चे जो है वो एब्सेंट हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास चल सकती है। समझ आया? फ्यू इज यूज्ड इन द नेग्लिजिबल सेंस, ना के बराबर। अ फ्यू मीन्स सम एट लीस्ट, कि ज्यादा लोग तो नहीं अटेंड कर रहे बट कुछ तो कर रहे हैं। A few means some at least, और the few means जितने भी थोड़े से वो सारे के सारे। Some but all, some but all,
This is the difference between few, a few and the few. और इन तीनों के साथ हमारा जो noun होगा that will be plural and verb will also be in the plural form. And few is only used for countable nouns. Few is only used for countable nouns. Now look at the example. There are few eggs in the fridge. We need not buy more. What is the error in the sentence? Is it clear to everyone? If there is a few, then we need not to buy. जरूरत नहीं है कि हम लोग और खरीदें. If it is there are few eggs in the fridge, we need to buy more. तो हमें और खरीदने की जरूरत है. Clear? Little is used for quantity. Or little if there is little milk in the pot. There is little milk in the pot means बहुत कम दूध है pot में. Means ना के बराबर, इतना कम है कि उससे कुछ भी काम नहीं चल सकता. If you write there is a little milk in the pot, कि ज्यादा तो नहीं है बट उतना है जिससे काम चल सकता है. Then the little milk in the pot is used for the patient. The little milk in the pot is used for the patient. कि जितना भी थोड़ा सा दूध था वो सारा का सारा पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर दिया गया. Clear? Is it clear to everyone? Now look at the example. He has little or few time. He has tried little or few times but failed. He has little or few rupees. He has little or few money. चलिए जी देखिए इसमें क्या एरर है. First is he has little time means उसके पास थोड़ा समय है. There it will be little. Next वाले में why few? Because time here is used as frequency.
So frequency is countable. It will be few. Next is he has little or few rupees, because rupees are countable. Then he has little or few money. क्यों? मनी भी तो काउंटेबल है. अच्छा, बहुत ज्यादा है तो इट इज अनकाउंटेबल. अगर कम है तो काउंटेबल. ऐसा है क्या? क्या आएगा नेक्स्ट में? फोर्थ वाले में क्या आएगा? He has little money because this is the currency. Money is uncountable. Rupees are countable. He has little money. Clear the difference between little and a little? और अगर यही सेंटेंस होता, he has a little money or little money to buy a car. तो यहाँ क्या आता? A little आता कि little आता? He has a little money to buy a car. कि ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है वैसा कि वो गाड़ी खरीद सकता है. क्लियर? Now look at the नेक्स्ट थिंग्स जिसके साथ वही होगा कि काउंटेबल है नाउन तो हेल्पिंग ऑफ प्लूरल में होगा. अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर होगा. मैं उसके एग्जांपल्स लिख रही हूँ तो फिर उससे वो, क्योंकि रूल्स वो एक ही जैसे हैं तो अलग अलग के लिए नहीं लिखूंगी. फर्स्ट इज, मैं ऊपर लिख देती हूँ, नाउन काउंटेबल, verb is plural. Noun uncountable, verb is singular. ये ऊपर हेडिंग ऐसे लिख कर रख सकते हैं आप. Now look at the examples. किस किस के साथ ऐसा होता है? For example, most of the persons are dishonest. Most of the persons are dishonest. Most of the apples are rotten. Most of the milk was impure. Most of the sugar was wet with water. About half of the students were present. About half of the students were present. He said that half of the hostlers were absent. Half of
of the milk was spoiled. Half of the milk was spoiled. Half of the land was cultivated. Half of the land was cultivated. Clear है यहाँ तक? Is it clear to everyone? So we are using singular as well as plural helping verb with most of. Most of के साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर रहे हैं और प्लूरल भी यूज कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नाउन. अगर नाउन आपका काउंटेबल है तो वर्ब जो है वो भी प्लूरल है. अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर में यूज किया जा रहा है. सेम इज द केस इन द नेक्स्ट सेंटेंस. व्हेन द नाउन इज काउंटेबल, verb is plural. When the noun is uncountable, verb is singular. ठीक है. अब यही रूल आप लोग अप्लाई करते हैं देयर के साथ. देयर के साथ भी हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल इन द रूम. There is a girl in the room. There are 10 students in the class. There was a queen. There were several ministers in the party. There were several ministers in the party. Several के बाद हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल में ही होगा. He got several injuries. तो ये भी ध्यान रखना कि several के बाद हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल में ही यूज किया जाएगा. अब हेयर के साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं. कब यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल? क्या है किसी ने? हेयर के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं. बताएगा कोई एग्जाम्पल? इफ यू से हिज हेयर आर ब्लैक, तो यहाँ इज आएगा या आर आएगा? हम्म. Five hairs of the horse are needed by him. अब इसमें आर आएगा कि इज आएगा? हाँ हाँ. तो आर क्यों आएगा सेकंड में? और यहाँ भी हमने हेयर्स लिखा है.
लोग हेयर, यूजुअली वी ऑलवेज यूज टू राइट हेयर, वी नेवर राइट हेयर्स, बट व्हेन इट इज काउंटेबल, जब उसको काउंट कर रहे हैं, नंबरिंग है कि 5 बालों की जरूरत है, तो तब हम लोग हेयर्स लिख सकते हैं, otherwise it will be hair only, and when it is hair, helping verb is singular, and in the second sentence it will be 5 hairs of the horse are needed by him, तो यहाँ हम लोग hairs यूज कर सकते हैं. क्लियर है? Now the next thing is if the subject is a number of plural verb is used with the plural noun. If the subject is a number of, plural verb is used with the plural noun. And if the subject is the number of singular verb is used with the plural noun. अगर आपका सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ, तो हमारा जो नाउन होगा वो भी प्लूरल में होगा और वर्ब भी प्लूरल में होगा. बट अगर आपका सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ, तो उस केस में आपका जो नाउन है वो तो प्लूरल में है, बट हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या आता है? अ नंबर ऑफ मीन्स मेनी, बहुत ज्यादा, और द नंबर इज कंसीडर्ड एज 1 यूनिट, इसलिए उसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज सिंगुलर. और अ नंबर इज कंसीडर्ड एज मेनी, इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आता है विद द प्लूरल नाउन. Now the examples are the number of students appeared in the examination was small. Next is the number of candidates appeared in the same examples होंगे वैसे. SSC exam was large. A number of books are missing.
अब अदरवाइज अपनी सिंपल लैंग्वेज में देखो तो नंबर ऑफ मीन्स अनकाउंटेबल, इतनी ज्यादा है कि हमने काउंट भी नहीं कर पाए कि कितनी किताबें मिस है. अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग. There were a number of students waiting for their turn. There were a number of students waiting for their turn. Clear? So इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सेंटेंस के स्टार्ट में ही होना चाहिए, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है नंबर ऑफ. ठीक है, ये तो सारे करेक्ट है, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स बताई हैं. क्लियर है? किसी को कोई डाउट पूछना है? किसी ने कुछ पक्का? कहाँ बच्चे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स प्लूरल में होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा. द नंबर ऑफ के साथ हमारा नाउन तो प्लूरल में है बट हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर. बस हो. चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज जो रूल्स हम लोग कर रहे हैं उसको लर्न कर लीजिएगा एंड विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग टुमारो. टिल देन stay home, stay safe and Jai Hind.